Okay, thank you. Yes. Good morning, student. How are you? I hope you all are fine at your homes. I am Pooja Sharma, your science teacher. Okay. So students, in our yesterday class, we have discussed about two sets of teeth. Okay. First one is temporary teeth and second one is permanent teeth. So temporary teeth, human beings have two sets of teeth, temporary teeth and permanent teeth. The first set of teeth in a child is called temporary teeth or milk teeth. These teeth begin to fall off when a child is about 6 years old. Okay, and milk teeth fall one by one and new teeth grow in their place. And new teeth are bigger than milk teeth, and the set of that takes the place of milk teeth is called permanent teeth. Okay, and the temporary teeth are 20 in numbers and permanent teeth are 32 in an adult. Clear? 16 in upper jaw and 16 in the lower jaw. Then we had discussed about the types of teeth. There are 4 types of teeth in human beings: incisors, canine, premolars, and molars. Okay, and we have already discussed about one. Clear? So now we discuss parts of a tooth. You can see here is a picture of parts of a tooth. So a tooth has two parts, a crown and a root. Okay, जो tooth है उसके two parts होते हैं. Upper part is crown and lower part is root. The crown is the part that we can see outside the gums. हमारे gums के outside में जो हमें white part दिखाई देता है हमारे tooth का, that is crown. And the root is the part of a tooth inside the gums. Okay, gums के inside में जो part होता है that is root part. The outermost white part of a tooth is called the enamel. Okay, जो outermost हमें gums के outside में जो white part दिखाई देता है that is enamel. And enamel are the hardest substance in the human body. Okay, it's the hardest white part of the tooth. And enamel is mostly made of calcium. Here it is the hardest substance in our body. Next one is below enamel is the hard dentine. So a layer under the enamel is dentine and it is a hard tissue that contain tubes. Inside dentine lies the soft pulp and dentine के यहाँ देखिए inside में आपको क्या दिखाई दे रहा है जो soft part है that is pulp. So pulp is the softer
inner structure of the tooth, and it form the central part of a tooth, and it has blood vessels and nerves. Okay, जो blood supply है tooth में, वो pulp में जो blood vessels and nerves हैं, उसके through हमारे जो tooth हैं, gums हैं, उन्हें जो blood supply होता है. Okay, and when the enamel is damaged, heat or cold can enter the tooth through this path and cause sensitivity or पेन. ओके, एंड जो हमारा जो हार्डर आउटर पार्ट जो इनेमल है, अगर वो डैमेज हो जाता है, तो जो हीट, जो भी हम फूड आइटम्स ईट करते हैं, अगर वो गर्म है या ठंडे हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम उन्हें ईट करेंगे तो वो इस पाथ के थ्रू एंटर करते हैं एंड हमें सेंसिटिविटी या फिर हमारे टूथ में पेन फील होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ. So teeth help us to cut, tear and chew food. You all know that teeth हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं? फूड को कट करने में, टीयर करने में एंड फूड को च्यू करने में टीथ हमारी हेल्प करते हैं. And when we eat food particles get stuck in the gaps between our teeth. And जब भी हम कोई फूड आइटम ईट करते हैं, तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे टीथ के बिटवीन में जो भी गैप होता है उसमें स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. And these food particles need to be removed. And इन food particles को हमें अपने teeth में से क्या करना चाहिए? Remove कर देना चाहिए. If teeth are not cleaned properly, germs can grow on them and form a yellow sticky layer called plaque. Okay, and अगर हम अपने टीथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो क्या होता है? उन फूड पार्टिकल्स पर जो जर्म्स हैं या जो बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, वो ग्रो करने लगते हैं. ओके, जो उस फूड में शुगर प्रेजेंट होती है उसमें, एंड एक येलो स्टिकी लेयर हमारे फूड टीथ पर फॉर्म हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्लाक. And these germs change the sugar present in food particles into an acids. And ये germs क्या करते हैं? जो हमारे फूड पार्टिकल्स में या शुगर प्रेजेंट होती है उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? किसमें चेंज कर देते हैं? एक एसिड में चेंज कर देते हैं. ओके, एक हार्मफुल एसिड में चेंज कर देते हैं. एंड दिस एसिड अटैक द इनेमल एंड मेक्स अ होल कॉल्ड कैविटी. एंड ये एसिड क्या करता है? जो कि इनामल पर अटैक करता है. ओके, इनामल क्या है? हमारे जो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बट ये एसिड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उस इनामल में भी क्या क्रिएट कर देता है? एक होल क्रिएट कर देता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैविटी. एंड व्हेन द कैविटी रीचेस द पल्प, द टूथ स्टार्ट्स पेनिंग. ओके, एंड जैसे ये कैविटी या जो होल है स्लोली बिगर होता है, ओके, जो माइक्रोब्स हैं, जर्म्स हैं, वहां पर ग्रो करते हैं. एंड जब ये कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है, ओके, रीचेस द पल्प, सो द टूथ स्टार्ट्स पेनिंग. देन हमारा जो टूथ है वो पेन करना, दर्द करना स्टार्ट कर देता है. Tooth decay result in bad breath, toothache and indigestion. Okay, and जो ये tooth decay है, हमारे tooth में जो cavity create हो गई है, इसके क्या result रहते हैं? Bad breath means जब भी हम breath लेंगे, सांस लेंगे, तो जो हमारा mouth में से bad smell आती है. Okay, toothache means हमारे दांत में दर्द होने लगता है, and indigestion, हमारे जो tooth हैं वो अगर उसमें कैविटी है, उसमें पेन है, तो हम अपना जो फूड है वो अच्छे से प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उससे हमें इनडाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है. क्लियर? सो व्हाट इज द वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ? फर्स्ट वन इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. आपको अपने टीथ में मॉर्निंग में एंड नाइट में डेली 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए. क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ प्रॉपरली. अपने टीथ का जो आउटर सरफेस है एंड इनर सरफेस है, बोथ सरफेस को प्रॉपरली हमें क्लीन करना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड्स एंड लोअर टीथ अपवर्ड्स. ओके, सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. सो जो अपर टीथ हैं उन्हें आपको डाउनवर्ड्स मींस ब्रश को नीचे की तरफ आपको लेकर आना चाहिए, एंड लोअर टीथ को अपवर्ड साइड आपको ब्रश ले जाना चाहिए. Next point is brush the chewing surface of premolars and molars. So हमने जब structure of tooth and molars and premolars के बारे में डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया जो molars and premolars हैं उनका जो surface है कैसा होता है?
ब्रॉड सरफेस होता है ना, फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस होता है. सो हमें प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का जो वो ब्रॉड सरफेस है उसे प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, बिकॉज वहां पर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं. नेक्स्ट इज rinse your mouth after every meal with water to remove food particles stuck between teeth. Okay, and जब भी आप अपना मील ईट कर रहे हैं, लाइक ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ओके, तो एवरी मील के बाद में आपको अपने माउथ को प्रॉपरली वाटर से रिंच करना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ताकि जो भी आपके टीथ के इन बिटवीन फूड पार्टिकल स्टक हो गए हैं वो रिमूव हो जाए. नेक्स्ट वन इज अवॉइड ईटिंग too many chocolates, sweets and sticky food. And हमें बहुत ज्यादा चॉकलेट्स, स्वीट फूड आइटम्स हैं एंड ऐसे फूड जो कि स्टिकी हैं, हमारे टीथ पर जाकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे फूड आइटम्स को हमें ईट करना अवॉइड करना चाहिए. मीन्स हमें ऐसे जो फूड आइटम्स हैं वो नहीं ईट करने चाहिए. These may stick to teeth and cause teeth decay. एंड ये फूड आइटम्स अगर स्टिकी हैं, ओके, स्वीट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे टीथ पर जाकर स्टिक हो जाते हैं. एंड अगर हम उन्हें प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं तो वहां पर जर्म्स ग्रो करने लगते हैं एंड क्या कॉज कर सकते हैं, टीथ डिके और कैविटी. Next one is eat fruits and raw vegetables like carrot and radish and drink milk every day for healthy teeth. तो आपको fruits and vegetables eat करने चाहिए, like carrot है, radish है, and everyday drink milk, okay, for healthy teeth. अगर आप अपने teeth को healthy रखना चाहते हैं तो आपको everyday क्या drink करना चाहिए, milk drink करना चाहिए. Clear? Next one is visit a dentist in every 6 months. And every 6 month में आपको अपने टीथ के चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. आई एम रिपीटिंग अगेन वंस what we today discuss. So first in this chapter we discussed about temporary teeth and permanent teeth. Okay, so the first set of teeth in a child is called temporary teeth or milk teeth, and the second set of teeth is called permanent teeth. Clear? Temporary teeth are 20 in numbers and permanent teeth are 32 in numbers. Next is type of teeth, that are incisors, canine, premolars and molars. Okay, incisors help to cutting and biting the food. Canines help to tearing the food. Okay, and premolar help to crush and chew the food, and molars help us to chewing and grinding the food well. Clear? And incisors are 8 in numbers, canines are 4 in numbers, okay, 2 in each jaw, okay, and premolars are 8 in numbers, 4 in each jaw, and molars are 12 in number, 6 in each jaw. Clear? Now come to parts of a tooth. Tooth के हमने यहाँ पर 2 part discuss किए हैं. First upper part is, that is crown, and inner part is root. Okay, outer जो white part हमें दिखाई देता है, that is enamel. Okay, and it is the hardest substance in our body. ये हमारी body का सबसे hardest substance और material होता है. Clear? And below the enamel there is a dentine, and inside the dentine lies the soft pulp. Okay, and dentine के inside में यहाँ पर क्या है, soft part है जिसे हम pulp कहते हैं, and इसमें हमारी blood vessels and nerves lie करती हैं. Clear? And यहाँ पर आपको जो pinkish part दिखाई दे रहा है, that is our gums. Okay, जिसमें कि हमारा जो tooth fix रहता है. Clear? Now how to taking care of our teeth? So teeth help us to cut, tear and chew the food. हमें कटिंग में, फूड के टीयरिंग में एंड फूड को च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं. टीथ हमारी स्पीच में हमारी हेल्प करते हैं. ओके, हमारे माउथ को शेप देते हैं टीथ. ओके, एंड सो हमें टीथ का प्रॉपरली टेक केयर करना चाहिए. ओके, बिकॉज व्हेन वी ईट फूड, सम फूड पार्टिकल स्टक इन द गैप बिटवीन आवर टीथ. कुछ फूड पार्टिकल्स जो है हमारे फूड, हमारे जो टीथ हैं उसके इन बिटवीन जो गैप है उसमें स्टक हो जाते हैं. ओके, तो these food particle need to be removed. हमें इन food particles को remove करना चाहिए. If teeth are not cleaned properly, germs can grow on them and form a yellow sticky layer called plaque. Okay, अगर हम उन्हें properly clean नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन food particles पर germ grow करेंगे and हमारे teeth पर एक yellow sticky layer form करेंगे जिससे कि क्या कहते हैं, plaque. And these germs
change the sugar present in food particle into an acid. जो हमारे food particles में food में sugar present होती है उसे एक acid में convert कर देते हैं and ये acid किस पर attack करेगा? हमारा जो white outer part हमने enamel discuss किया था उस enamel पर attack करता है, उसमें एक hole बना देता है, okay? जिसे हम क्या कहते हैं? Cavity. And when the cavity reaches the pulp, the tooth start paining. And ये जैसे जैसे cavity बिगर होती जाती है, ओके, जर्म्स उसे कंटिन्यू उसे बड़ा करते हैं, तो क्या होगा, ये कैविटी अगर पल्प तक पहुंच जाती है तो हमारा जो टूथ है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है. सो व्हाट इज द वेज टू प्रोटेक्ट आवर टूथ? ब्रश ट्वाइस इन अ डे, ओके, क्लीन योर both the inner side and outer surface of your teeth properly. Brush the upper teeth downward and lower teeth upward. Next is brush the chewing surface of premolars and molars. Molars and premolars का जो broad and flat surface है उसे भी properly हमें clean करना चाहिए. Rinse your mouth after every meal and avoid eating too many chocolates, sweets and sticky food. Eat fruits and raw vegetables and drink milk every day. Next is visit a dentist in every 6 months. Clear? Now, next point is digestive system. So, we eat a variety of food every day. Okay, we have already discussed in our chapter number 1 that हमें different kind के जो food items है, food variety है, वो हमें अपनी diet में include करना चाहिए. Okay, and the food we eat is broken down into simpler substances so that the nutrients in food can be absorbed by our body. Okay. सो जो भी हम फूड ईट करते हैं वो हम किसमें ब्रेक डाउन होता है? सिंपलर सब्सटेंस में. ओके, लाइक स्लोली हमने फूड को अपने माउथ में लिया, देन हमारे जो टीथ हैं उन्होंने उस फूड को क्या किया? च्यू किया, अच्छे से क्रश किया, ग्राइंड किया, एंड हमारे माउथ में जो एक सलाइवरी ग्लैंड है उसने सलाइवा या लार सिक्रीट किया जो कि उस हमारे फूड में मिक्स हुआ एंड फूड को एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो इस तरह से जो हमारा फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है. ओके, एंड देन वो हमारी फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में. ओके, सो दैट द न्यूट्रिएंट इन फूड कैन बी एब्सॉर्ब बाय आवर बॉडी, ताकि हमारे उस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे हमारी बॉडी क्या कर सके? एब्सॉर्ब कर सके, इनटेक कर सके. ओके, जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी इनटेक कर सके. So the process of breaking down of food into simpler substances is called digestion. So what is digestion? The process of breaking down of food into simpler substances is called digestion. Many organs work together to digest the food. एंड इस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो इसमें हमारी हेल्प करते हैं. ओके, दीज ऑर्गन्स फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड ये सब जो ऑर्गन्स हैं मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर? सो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? व्हेन वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, so the food we eat is broken down into simpler substances so that the nutrient in food can be absorbed by our body. जो भी हम food eat कर रहे हैं उसका simpler substances में broke down होना, उस टूटना उसका जरूरी है, because तभी जो उस food में nutrients हैं उसे हमारी body intake कर सकेगी. ओके, तो जो भी हम food eat कर रहे हैं उस फूड का simpler substances में breaking down होना ही क्या कहलाता है? Digestion. एंड बहुत सारे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. सो दीज ऑर्गन फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर? नाउ सी हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. फर्स्ट इज माउथ. सो आवर डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम mouth. Okay, so the process of digestion start in the mouth. In the mouth, teeth chew and grind the food into small pieces. माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे ही हम फूड को ईट करते हैं तो माउथ में जो टीथ प्रेजेंट हैं वो फूड को च्यू एंड ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. ड्यूरिंग च्यूइंग, a liquid called saliva
mixes with the food. Okay, and जैसे जैसे हम फूड को च्यू करते हैं उसमें एक लिक्विड मिक्स होता है जिसे कि हम सलाइवा या हमारी लार कहते हैं. ओके, तो वो उस फूड में मिक्स होता है and it makes the food soft and moist and help in digestion. And ये सलाइवा जो है ये क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, मॉइस्ट बनाता है एंड डाइजेशन में हेल्प करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज सेकंड इज इसोफेगस और फूड पाइप. ओके, सी इन द पिक्चर. यहाँ से जो माउथ से फूड है वो इस फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ जा रहा है, स्टमक में. ओके, सो इसोफेगस और फूड पाइप is the food formed from the mouth goes down the food pipe and reaches the stomach. Okay, जो हमारा फूड है वो माउथ से फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ रीच कर रहा है, स्टमक में. क्लियर? Now next third one is stomach. So the stomach is a sac-like organ where digestive juices breaks down the food further. Okay, so stomach क्या है, एक sac-like बैग की तरह एक स्ट्रक्चर है. ओके, जहां पर क्या होता है, डिफरेंट काइंड के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो सिक्रीट होते हैं वहां पर एंड वो हमारे फूड को फर्दर क्या करते हैं, उसको और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. सो from the stomach the food passes into the small intestine and food से stomach से जो हमारा food है कहाँ पास होता है, small intestine में. Digestive juices completely digest the food and useful nutrient present in digested food are absorbed through the walls of small intestine into the blood and blood carries these nutrients to all parts of the body. ओके, तो स्टमक में डिफरेंट काइंड के जो जूसेस हैं वो सिक्रेट होते हैं, लाइक पैनक्रियास जूसेस है. ओके, ये फूड को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है. उसके अलावा जो हमारा एक ऑर्गन है लीवर, इट्स आल्सो प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल. ओके, दैट आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड and bile move into the small intestine for digesting the food. Okay, पैनक्रियाज से जो डाइजेस्टिव पैनक्रिएटिव जूस है वो हमारे फूड में मिक्स होता है. ओके, एंड ये हमारे फूड को और सिंपलर जो सब्सटेंसेस है उसमें कन्वर्ट कर देता है. ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. सो द डाइजेस्टिव जूसेस कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड. जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उस फूड को और अगेन सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. So useful nutrient present in digested food are absorbed through the walls of small intestine into the blood. तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, उस डाइजेस्टिव फूड में से जो भी उस डाइजेस्टिव जूस में से जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. ओके, and blood carries these nutrients to all parts of the body and blood क्या करता है, उन nutrients को आपकी बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं वहां पर कैरी करता है. now liver, we can discuss about liver that it produces a digestive juice called bile that help in the digestion of food and bile move into the small intestine for digesting the food. Okay, जो bile juice है वो small intestine में जाकर उस food में mix होता है and उस food को digest करता है and small intestine food में present जो भी nutrients है उन्हें absorb कर लेती है. Clear? Now next is large intestine. Food that cannot be digested in the small intestine comes into the large intestine. Okay, so ऐसा फूड आइटम जो हमारा वो डाइजेस्टेड फूड था जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो फूड आइटम अब फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, यहाँ पर आपको जो इनर यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉइल जैसे शेप है यहाँ पे, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आउटर में जो है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, so food that cannot be digested in the small intestine comes into the large intestine. It absorbs water from the
undigested food and forms feces. Okay, ये उस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है फॉर्म फीसेस. फीसेस में जो भी हम सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से सिक्रीट करते हैं उसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनस. सो फीसेस पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, एंड जो भी हमारा फीसेस है जो सॉलिड वेस्ट है, ओके, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, दैट इज पासेस थ्रू द एनस. तो उसे हम एनस के थ्रू हमारी बॉडी से थ्रू आउट कर देते हैं. क्लियर? So let's know more about that. Small intestine is the longest part of our digestive system. It is about 6 meter long. जो small intestine है वो हमारी body का सबसे longest part है. Okay, and इसका length कितना है? It is about 6 meter long. जो small intestine का length है that is 6 meter long. But ये हमारे यहाँ पर body में बिल्कुल यहाँ पर coiled form में रहती है. Okay, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल स्मॉल स्पेस में ही यहाँ पर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन शो हो रहा है. क्लियर? सो हियर आई एम रिपीटिंग अगेन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो वी कैन ईट अ वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे. हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड का वेराइटी फूड आइटम्स ईट करते हैं. सो द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट द न्यूट्रिएंट इन फूड कैन बी absorbed by our body. Okay, हमने फूड में डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था, दैट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो फूड आइटम्स हैं में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, बट ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को कैसे मिलेंगे, हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को कैसे इनटेक करेगी. ओके, तो उसके लिए जो भी हम फूड आइटम्स ईट कर रहे हैं उसका सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना इम्पॉर्टेंट है. ओके, ताकि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी इनटेक कर सके. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड into simpler substances is called digestion. Okay, फूड का डाइजेशन होना, फूड का पचना, पाचन होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहते हैं, जिसमें फूड ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड, एंड फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं एक साथ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं ये मिलकर एक साथ वर्क करते हैं, एंड दीज ऑर्गन फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड ये सभी ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. मीन्स हमारे फूड के डाइजेशन में ये सारे बॉडी ऑर्गन अपना पार्टिसिपेशन देते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले डाइजेशन किससे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम माउथ. ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. In the mouth, teeth chew and grind the food into small pieces. Mouth में जो teeth हैं वो food को chew करके, grind करके small pieces में convert कर देते हैं. During chewing, a liquid called saliva mixes with the food and it makes the food soft and moist and help in digestion. Okay, उसमें saliva mix होता है जो कि food को soft and moist बनाता है and digestion में help करता है. Next is food pipe. The food from the mouth goes down the food pipe and reaches the stomach. Mouth से जो food है वो stomach तक किसके through reach करता है? Food pipe और esophagus के through. Clear? Next is stomach. So stomach is a sac-like organ where digestive juices break down the food further. Okay, stomach हमारा एक bag-like organ है हमारी body में जिसमें कि food में different kind के जो juices हैं वो उसमें मिक्स होते हैं. ओके, लाइक जो हमारी बॉडी का एक पार्ट है पैनक्रियास, वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट करता है. ओके, जो कि फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करता है. नाउ फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, स्टमक से फूड कहाँ पास आउट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. डाइजेस्टिव जूसेस कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड एंड यूजफुल न्यूट्रिएंट present in the digestive food are absorbed through the walls of small intestine into the blood. Okay, तो उस जो digested food है उसमें से जो भी useful nutrient है वो small intestine की walls के through क्या कर लिए जाते हैं?
एब्सॉर्ब कर ली जाते हैं, ओके। एंड ब्लड कैरी दिस न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड जो ब्लड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में कैरी करता है। नेक्स्ट इज लीवर। सो लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। लीवर भी एक डाइजेस्टिव जूस, जिसे कि हम पाचक रस कहते हैं, जो हमारे फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो सिक्रीट करता है, ओके। दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। Bile moves into the small intestine for digesting the food, and जो bile juice है वो small intestine में जाता है, वहां पर food को digest करने में help करता है। Now, food that cannot be digested into the small intestine comes into the large intestine, okay? जो ऐसा food जो कि small intestine में properly digest नहीं हो पाया है, वो कहाँ go through होता है? Large intestine में, and it absorb water from the undigested food and form feces. And यहाँ पर उस undigested food में जो भी water है उसे absorb कर लिया जाता है, and जो हमारा remaining है undigested food है वो किसमें क्या बनाता है? फीसेस, लाइक सॉलिड वेस्ट, जो कि हम अपनी बॉडी से थ्रू आउट करते हैं। एंड फीसेस पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। सो एनस के थ्रू जो हमारी बॉडी का सेक्रेटरी है, सॉलिड सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। क्लियर? एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द longest part of our digestive system. So I hope you all understood about the part of tooth and our next topic, that is taking care of tooth, and last is digestive system. Okay. So students, if you have any doubt, any query about today's topic, you can call me between 2 o'clock to 6 p.m. Okay. 2 p.m. to 6 p.m. You can call me and you can ask me your queries or your question related to our today's topic. Okay. So till then, goodbye and take care.